तो हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्कार राम राम अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, बहुत सारे ग्रीटिंग्स यहाँ से इस तरफ से और बहुत सारे ग्रीटिंग्स आपकी तरफ से वहां से यहाँ भेज दो। क्यों? क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट टॉपिक इज? व्हाट आर वी टॉकिंग? वी टॉकिंग अबाउट what are we talking about? We're talking about reading comprehension. Yes. Now, how important it is, though you all know, but then yes, some people, might be here जिनको थोड़ा सा अभी भी लगता है कि हाँ भाई आरसी होता है और एक वर्बल एबिलिटी होता है, जिनको ऐसा लगता है ना कैट में, उनसे भी हम बात करेंगे अभी। तो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 7 टिप्स टू एक्सेल we're going to talk about. That is our target. That's the agenda we have today. And at the same time, let me give you a statement here, an assertion. अभी लेट नहीं है ना? अभी हमने, हो सकता है कि अभी अभी हमने शुरू किया हो, बट अभी भी लेट नहीं है। तो जितना हो सके पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनो, दैट व्हाट हाउ यू कैन मेक, यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स इन आरसी, व्हाट टिप्स शुड बी देयर, व्हिच यू वुड बी फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिनको अभी भी ये लगता है कि आरसीज इतना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है। तो मेरी बात सुनो, उससे पहले मैं बता तो दूं कि मैं हूं कौन, जैसे थोड़ी हो सकता है मेरी बात सीरियसली सुन लो। हाँ, so I'm in LMS, I am Calcutta guys. I'm a leadership coach by Harvard Business School, and at the same time, what? I've been mentoring students for good time now, more than 10 years, yes. And I've mentored more than 25,000 students. उससे क्या होता है? उससे ये होता है, उससे क्रेडेंशियल थोड़ा सा तो सेट होता है। ऐसे मत करो, बात मान लो। बात तो माननी पड़ेगी। अभी मनवाता हूँ, देखो। I'll give you all the logic, all behind these 7 tips I'm going to talk about. So I'm a published author, guys. Thanks to Lead Start. The book is in India and US both. You can read it whenever you want. It's a good read. I would always say that only. And most important, significant, relevant fact is आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। एक दूसरे को अगर हम, if this agreement happens, both of us will be benefited. ठीक है? और ऐसी रिलेशनशिप चलती है दुनिया में। बिल्कुल, हाँ। चलिए, so before I come on to RCs, I would like to ask you a question. Have you ever thought what would be the difference between tactics and strategies? यहाँ पर हो सकता है, people who are listening to me at this moment, उसमें से कुछ लोग WorkX वाले होंगे, still, if you reached leadership positions, only then you would be, strategizing certain things, because tactics would not work. Okay, tactics also work, but what is the big but between both tactics and strategy? तो देखो क्या होता है, tactics होते हैं for short term gain. Tactics are for short term gains, and at the same time strategies are for, yes, opposite ही बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं किसकी? long term. Okay, so tactics are for short term and strategies are for long term. लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए स्ट्रेटेजाइजिंग करते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी चीज़ पर फंडामेंटली काम करना होता है ना, जो ओवरनाइट नहीं हो सकती, जैसे कि हमारी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं रीड भी कर लूँ, मैं कॉम्प्रिहेंड भी कर लूँ, और इसके लिए मुझे कोई टिप्स या टेक्निक मिल जाए या ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए कि ओवरनाइट सेट हो जाए, तो ओवरनाइट नहीं होगा। डू नॉट वेट that I'm going to give you some kind of a magical tip that you'll apply it as a key today and tomorrow you'll start seeing results. No, it's not an overnight job. तो यहाँ टैक्टिक काम नहीं आएंगे। तो जितने ये खिलाड़ियों के खिलाड़ी टाइप वीडियो आते हैं ना, आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, ये 5 मिनट में 5 टेक्निक बताऊंगा और तुम दुनिया पे छा जाओगे। This video, this session is not like that. I'm going to tell you only fundamental 7 tips. How would you be effectively targeting reading comprehension, specifically when it comes to CAT, and why it is so important. Why it is so important, because if you look at last 3 to 4 years CAT pattern, 34 questions we see usually in VARC. Out of 34, 24 questions we see of reading comprehension. अच्छा बॉस, ये तो डायरेक्ट है ना, आरसी 24 क्वेश्चंस डायरेक्ट आरसीज आ गए। इन 10 में क्या आ रहा है? वेयर डू यू फाइंड स्ट्रेट क्वेश्चंस? यू फाइंड पैराजम्बल्स, यू फाइंड ऑड वन आउट, you find CR questions, you find summaries. अब मैं इनमें से कोई सी भी बात करूं, इसमें से कौन सा है जो बिना कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व हो रहा है? तो द इंटायर लैंग्वेज सेक्शन इज डिमांडिंग व्हाट? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, एकदम मुंह फाड़ के, दैट योर कॉम्प्रिहेंशन हैज टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, आप कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं कि हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं? हो गए ना? तो बढ़ जाते हैं फिर आगे जिंदगी में।
चलिए, so okay, reading comprehension and how would I start excelling? How should I begin? What all should I do? You sometimes feel that you find it difficult to excel in RC. There's no one, there's no one who says that I'm amazing at RCs. No one. जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतनी भूख बढ़ती जाती है, उतना ही जितना समझ में आता है उतना मन बढ़ता जाता है कि और समझ में आए। यस, अभी अगर बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो आपको टेस्ट नहीं है, चस्का नहीं है। एक बार ये लड्डू खा के देखो, कोई ऐसा नहीं है जो एक ही लड्डू खाता है, मज़ा बहुत आएगा। एंड बिफोर आई टेल यू द टिप्स एंड एवरीथिंग, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। पूरी दुनिया में कुछ मैं ऐसा घुमा दूं एंड आई आस्क यू टू गो एंड सर्च फॉर इट, गोना बी डिफिकल्ट, राइट? एंड इफ आई टेल यू क्या तुम्हारा जो रूम है ना, बस वहीं पे कुछ खो गया है, ढूंढ लो ज़रा, आसान होगा। तो क्या है ना, यहाँ पर क्या है, एक पैसेज है, ठीक है? और पैसेज से के क्वेश्चंस बने हुए हैं, यानी इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कहाँ पे हैं, वो इस पैसेज में है। ढूंढना ही तो है, निकाल के थोड़ी लाना है, ऐसे बैठ के ऊपर देख के सोच रहे हूँ, कुछ कुछ याद, लोगों को याद करें, भगवान को याद करें, एक बार यूँ माता जी बजरंगबली बता दो जरा। सब यही है, यही सोचना है, यही ढूंढना है, ठीक है? कितना आसान है ना? ठीक है, तो उस माइंडसेट के साथ अपन शुरू करते हैं। वी गोना टॉक अबाउट दो 7 टिप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड before we begin, we start talking about 7 tips. Let us, you and me both, give a strong thanks to Unacademy that we both are meeting today. What number one, and number two, in my last video also I told you about investing in returns. Okay, you first invest and then you get returns. So guys, June it is. This is the high time. This is the high time to subscribe either Plus or Iconic from Unacademy. Plus subscription आपको already पता है, live classes होती हैं, but then they are structured and you have unlimited access to almost all, not almost, I mean, yes, to all the educators. But if you ask me my suggestions as a mentor, I would always say that please go for Iconic. Why? Not I would say for example, but for me, the concentration is on test analysis. Yes, test analysis. भाई देखो, प्रिपरेशन कैसे होती है एप्टीट्यूड टेस्ट की, बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बहुत सारे टेस्ट देते हैं, और वो जो टेस्ट अगर बिना एनालिसिस के छोड़ दिए तो उसका यूज नहीं है। यस, तो ये जो टेस्ट एनालिसिस है ना, ये आइकॉनिक में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा गाइडेंस, स्टडी प्लानर, मटेरियल एंड एवरीथिंग, दिस इज ऑल ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर लेस इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, ये भी तो स्टडी मटेरियल भी तो बहुत अमेजिंग है, वो ठीक है। My point is test analysis, test analysis, test analysis. If you're taking a test, if you're not analyzing with an expert, trust me that 2 hours or 3 hours or whatever the time you've invested in your test, that's wasted. Okay? So make sure that you keep, taking tests, analyzing them by what? Iconic. Subscribe Iconic. So there are new batches coming onto your way. कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, ऐसे बहुत अमेजिंग से बैचेस एज पर योर नीड एंड एवरीथिंग स्टार्ट होते रहते हैं। सो एनरोल योरसेल्फ इन द अपकमिंग बैच और बस छा जाओ फिर दुनिया पे, ठीक है? एंड व्हेन यू डू दैट, what would you do? You will use my code. Yes, this is my name, you all know, Gaurav Sharma, and this is what? ये आपका सपना। हमारा पॉलिटिकल कैंपेन है ना, हम बात करते हैं ना इस बारे में, मेरा नाम तुम्हारा सपना, बस छा जाओ फिर। एंड सजेशन, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म वन, जितना हो सके, जितना समय है अपने पास उसके अकॉर्डिंग। कैट देखो, कैट 21 नहीं है अपना सपना। अपना ये कि बस जो कमिंग सेशन है उससे अपना एमबीए स्टार्ट हो जाए, ठीक है? इफ दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग कैट 21, तो कैट 21 होगा, फिर जैट होगा, फिर उसके बाद जीडीपीआई होंगे। सो गो फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान। जितना प्रोग्राम को एज इट इज गोना बी बेनिफिशियल, क्योंकि फीस उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है, ठीक है? तो 2 things, 1, go for long one, 6 months, 12 months, 2 years, as per whatever the time you have, and go for Iconic. And when you do that, you can use my code. It will give you extra benefit. It will benefit you more in terms of giving you 10% more discount. मेरा उससे थोड़ा बड़ा फायदा होगा, मुझे पता लग जाएगा that who all students are using my code and they're taking admission, so that I will have them in my batches also. I can look into their mentoring and everything. तो काफी कुछ कर सकते हैं अपन, पता तो लगे कि कौन पढ़ रहा है साथ में, कौन जा रहा है अंदर, कौन नहीं जा रहा है, ठीक है? चलिए पहुंचे आगे, बढ़ जाए जिंदगी में, बोलो। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर आवर डेली रिचुअल। 5 to 10 seconds we're going to close our eyes and would remind ourselves that these pictures will be replaced by our pictures, है ना? जल्दी जल्दी से एकदम डिसाइड कर लो, ऐसा टॉप पे आनी, साइड में आनी, कहां पर आ रही है।
क्योंकि जो सक्सेस खुद तक रह गई उसने अगर बाकी लोगों को इंस्पायर नहीं किया तो फायदा क्या होगा? नहीं होगा ना। और दूसरा बिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सरसाइज है हमारी बिलीफ वाली कि हम अपने आप को ये बताएंगे कि हम वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बिना बिलीफ के प्रिपरेशन कैसे होगी? बिना बिलीफ के प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पढ़ाई कर भी रहे हैं लेकिन बिलीफ ही नहीं है कि हम पेपर निकाल लेंगे, ऐसा टॉप मारेंगे, परसेंटाइल आएगी, कहीं नहीं पहुंचेंगे ना। बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा किसी काम को कर लेना और मेरा किसी काम को करने का पता होना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। When I know that I can do it, then it is not about the entire universe starts helping me. Basically the universe is within me, and when I'm serious I would be looking for help, I'll be looking for assistance, I'll be texting my educators on an academy, and I'll tell my mentors, ये मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एक टेस्ट और देना है, I need some word list and some more questions of quant. वो यूनिवर्स जो अंदर है ना वो एक्टिव हो जाती है जब बिलीफ स्ट्रांग होता है। ठीक है, राइट, प्रॉमिस। तो जल्दी से अपने कीबोर्ड से फटाफट से टाइप कर दो जो कि हमेशा करते हैं, क्या? कुछ भी ऐसा जो ये बताए दैट यू रेडी टू मूव अहेड इन लाइफ। जस्ट टाइप लेट मी मूव अहेड, आई एम गोना मूव अहेड, आई एम गोना क्रैक इट, और सिंपल लेट्स क्रैक इट, फिनिश। ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सक्सेस बिल्कुल सिंपल होती है बॉस। मेहनत चाहिए, काम करना पड़ेगा, करो, हो जाएगा। ये नहीं वो हो जाएगा, वैसा नहीं ऐसा हो जाएगा, बट यू विल रीच समवेयर वेयर यू ऑलवेज वांटेड टू। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज का हमारा टॉपिक था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, and I told you that it's not some kind of a tactic you would use and then overnight you will become like Basha of reading comprehension. No, reading and comprehending is a fundamental skill. You read, you comprehend, it's a fundamental skill based on both your knowledge also, your interest also. तो नॉलेज से नॉलेज और बढ़ती जाती है, कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है। These 7 tips are going to be very fundamental. There's no clickbait, there's no like ऐसे बस बुला लो कैसे भी करके वीडियो में बच्चों को, ऐसा सबको बिठा लो सामने और फिर बना के भेज दो, है ना? तो कुछ बना के नहीं भेजा जाएगा आपको, यहाँ पर समझाया जाएगा कि कौन से 7 टिप्स, हाउ यू गोना गो अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए, सो द लिस्ट ऑफ 7 टिप्स वेयर इन द फर्स्ट टिप सेज, कितना सिंपल है, ये तो पता था मुझे। लेट अस टॉक अबाउट इट। डेवलप अ गुड रीडिंग हैबिट, नॉट फॉर कैट, not for MBA, not for something short term, long term. What do you say? What do you think? You would be talking on phone, you would be meeting in person. 90% relevant correspondence, effective correspondence, communication would be happening written. ठीक है, written correspondence. If you do not have a good reading habit, कैसे काम करोगे? कैसे तो टेक्स्ट भेजोगे? कैसे टेक्स्ट रिसीव करके उन्हें पढ़ोगे? आपको पता है MBA, MBA has got how many courses? MBA has got 40 courses. Yes, a year. Now every course has more than 3 case studies. Okay, every course has more than 3 case studies. Now one case study is not less than 100 pages, 80 to 100 pages, 100 pages मान लेते हैं। यानी कि अगर ऑलमोस्ट रोज के 2 से 3 केस भी सॉल्व कर रहे हो तो 200 to 300 you pages you reading every day. It means एक अच्छा साइज का नॉवल आप रोज खत्म कर रहे हो। अच्छा, ये तो कहानी भी नहीं है। एमबीए में ये तो कहानी थोड़ी पढ़ते हो, तो केसेस पढ़ते हो आप, इसमें एनालिसिस होता है, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, अजम्पशंस क्या होंगे, फिर हुआ तो कंपनी क्या करेगी, ऐसा हुआ तो कंपनी क्या करेगी, हाउ कस्टमर्स वुड रिएक्ट। So these are cases from different industries which require your analytical approach. You would be doing everything what you're doing today in your CAT examination. Summarizing भी करोगे पूरे पॉइंट को, उसका आर्ग्यूमेंट भी करोगे, सामने वाले का assumption जो आ रहा है वो किस बेसिस पे निकाला है, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर VARC में करते हो वो सेम केस स्टडीज में आप करने वाले हो चीजें। How relevant the examination is. Hats off to somebody who's designed this paper like this, that whatever they are challenging you on, whatever they are expecting you to work on right now, that will be used tomorrow. पहली बार को एग्जाम ऐसा हो रहा है ना? और क्या, याद ही नहीं आता, नहीं तो पता नहीं 10th स्टैंडर्ड तक क्या क्या पढ़ा था, कभी काम ही नहीं आता दोबारा, पर ये सारा का सारा काम आएगा, और क्या चाहिए। So when you develop a good reading habit, what you need to do that is, देखो, before you start solving RC questions, good amount of reading has to happen. उसके बाद स्पीड रीडिंग आएगी, उसके बाद RC क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि पहले तो रीडिंग, फिर स्पीड रीडिंग, और उसके बाद RC questions and passages, everything. How? स्पीड नहीं है,
कॉम्प्रिहेंशन वीक है क्योंकि रीडिंग की आदत ही नहीं है, फिर हमने क्या उठाया, हमने उठाया पैसेज और उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, मार्क्स आए नहीं, डीमोटिवेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग इट टुडे, now you decided for yourself, if you're starting for today, I'll say that for another 2 weeks minimum, do not pick up any RC. No, just read for good time. Don't even think of speed, just read for 15 days as much as you can, इतना जितना आपसे नहीं हो सके। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटा पढ़ सकते हो तो 1.5 घंटा पढ़ो, अगर आपको लगता है 1.5 घंटा पढ़ सकते हो तो 2 घंटे पढ़ो, पुश करो, लिमिट पुश करो फॉर 2 weeks, कीप रीडिंग कीप रीडिंग कीप रीडिंग, डेवलप इट। उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से कहीं नहीं पहुंचोगे, गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी हिलेगी नहीं, ठीक है। रीडिंग की हैबिट ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, अगर इसे माइंड में बिठा लोगे इट्स गोना हेल्प यू ओनली। टिप नंबर 2, understand question types. Once you develop, okay, this is step by step, once you develop good reading comprehension skills, समझता, मैं जो पढ़ता हूँ समझता हूँ, किससे गुड किसे कहते हैं, what is good? 25%, 25% if I'm able to comprehend what is given in the passage or whatever the text I'm reading, if I'm reading a book or an article, whatever it is, if I understand 25% of it also, डिसेंट मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल थोड़ा शुरू हुआ है, गाड़ी हिलना शुरू हुई है। जब ये हो जाए तब आओ टिप 2 यानी कि स्टेप 2 पे। यहाँ क्या करना है आपको, अब क्वेश्चंस के टाइप समझने हैं। When you'll understand the question types, there are few more videos I already have in my playlist where I'm talking about types of questions with examples, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने वहां बैठ के, उन वीडियोस को रेफर करो, उनको जाके देखो। तो क्या होता है, कैट के आरसी में कुछ 4 5 6 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं बस, इसमें ये ज्यादा वेरी नहीं करते, दे डोंट वेरी मच। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसेज आ गया फिर वो कुछ भी पूछ लेगा, अरे क्यों पूछेगा, टाइम वेस्ट थोड़ी करेगा पूछ के एग्जामिनर, कुछ भी पूछ के। बस 5 7 तरह के क्वेश्चन है, वो चाहता है कि आप वो समझ लो पैसेज में जो लिखा है, आप वो भी समझ लो जो नहीं लिखा है। क्या बात हो गई, वो कैसे समझेंगे जो नहीं लिखा। बेटा जब मम्मी अपने को आंखें दिखाती तो कुछ कहती नहीं है, लेकिन अपन समझ जाते हैं कि बस कुछ ना कुछ गलती है ना। अपन गए किसी के घर पे खाना खाना, पार्टी वार्टी है, अपन ने अपनी प्लेट में पहाड़ बना के अपन ने खाना डाला है, फिर मम्मी से नजरें मिली, दिल धड़का है, तो जब वो नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कनों ने कहा कि वापस सारा खाना मैं वापस रख दूं, क्योंकि ये पचेगा तो है नहीं, उसे खाया नहीं जाएगा, हलक से नीचे नहीं उतरेगा। जबकि मम्मी ने क्या कहा, डांटा नहीं, चिल्लाई नहीं, कुछ भी बोली नहीं, शी जस्ट गेव यू अ लुक। तो यू अंडरस्टूड, दिस इज व्हाट इम्प्लिसिट मीनिंग, उन आंखों की मस्ती के जो परवाने हजारों नहीं, तुम ही थे बेटा, अब तुम्हारा ही होगा जो भी होगा। तो वो तुमने समझ लिया, वो दोस्त जो पास खड़ा था उसको समझ में नहीं आया, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट आइडिया, यानी कि जो नहीं लिखा हुआ है, जो नहीं कहा गया, वो भी समझ में आ गया बिकॉज ऑफ द टोन। तो इस तरह के कुछ 5 6 क्वेश्चन आते हैं कि इम्प्लिसिट आइडिया क्या था, इन्फर आपने क्या किया, थीम क्या है पैसेज की, ये 6 7 8 तरीके के क्वेश्चन है बस। When you'll start understanding a typical type of questions, that what exactly is being asked in a passage, बस फिर क्या टेंशन है, फिर तो हो जाएगा सब। फिर क्या होगा, स्ट्रैटेजी बना पाओगे, समझ में आना शुरू होगा कि मेरा थीम वाला क्वेश्चन गलत होता है, मेरा इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन गलत होता है, मेरा स्ट्रेंथिंग द आर्गुमेंट गलत होता है, मेरा ये सही होता है। यू कैन कॉन्सेंट्रेट एंड यू कैन मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ओके, एंटिसिपेट कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी समझ पाओगे, मेरे 5 में से 3 तो सही हो जाते हैं लेकिन वो गलत होता है, तो 60-70% तो मेरे आने लगे हैं। दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड एंटिसिपेट योर एंटायर प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू आरसी। टिप नंबर 3, थैंक यू बोलो और आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो, थैंक यू बोलो, हाँ शाबाश। अब क्या करना है, अब समझना है कि जो एक अच्छा स्टूडेंट है, ओके, अपनी विसिनिटी में, अपने दोस्तों में, या अपने जो मेंटोर्स हैं, अपने एजुकेटर्स हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं जब पैराजंबल प्रैक्टिस कराता हूँ अपने क्लासेस में, आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, दे नो इट दैट व्हेन आई डू इट, फर्स्ट व्हाट डू आई गिव द क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स कि भाई तुम कर लो, फिर वो जब क्वेश्चन को करते हैं फिर मैं करता हूँ। तो मैं हमेशा कैसे शुरू करता हूँ, देखो मैं कैसे करता, मैंने सवाल देखा, मैंने क्वेश्चन देखा, आई सॉ ऑल दी स्टेटमेंट्स, आई डिड नॉट रीड एनी स्टेटमेंट, आई गो ऑन टू द क्वेश्चन ऑप्शंस, और मैं बोल बोल के वैसे सॉल्व करता हूँ जैसे मैं यूजुअली करता हूँ अपनी लाइफ में। इफ यू गिव मी द पेपर, दैट्स हाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। That's the same way, just figure out that what a good student and what your educator is doing, what your mentor is doing, and how do they get good marks, I mean 100% accuracy or 90-80% accuracy, and what are they doing, what exactly their strategy is. Then try and do not just copy,
बट इफ इट्स अ फंडामेंटली करेक्ट थिंग, मेक इट योर्स ऑल्सो। उसे क्या होगा, उस डायरेक्शन में उस तरीके से जब सोचना शुरू करोगे, वर्क करना शुरू करोगे, सो आपका भी एक मेथड बनेगा। हाँ, देखो क्या होगा, ऑल्टरेशन तो होंगे बिकॉज आप हो, आप वो नहीं हो। कॉपी करना किसने कहा है कि खराब होता है? किसने कहा खराब होता है? अगर कोई अच्छी चीज है तो कॉपी करने में प्रॉब्लम क्या है? Figure out what people are using their strategy as. Do they read questions first, or they read only passage, they do not go back to the passage, or they quickly read the passage then they go to the questions? ऐसे कुछ approaches हो सकती हैं जिनके वीडियो अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो में भी क्या होगा, I'll be taking a session on how to approach, but that's my way of doing it. Why am I talking about that? You listen to it and discover your own. That's the same way. तो फिगर आउट कि यार कौन कैसे यूज कर रहा है जो अच्छा स्कोर कर पा रहा है, ठीक है। ओनली देन यूल बी एबल टू डिस्कवर योर ओन अप्रोच। और जब तक आपकी अप्रोच डेवलप नहीं होगी, जब तक एक्यूरेसी पे काम होना शुरू नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। यू हैव टू हैव अ अप्रोच। तो क्या किया, 3 टिप्स में अपन ने, फर्स्ट टिप में अपन ने कहा रीडिंग करो, दूसरे टिप में अपन ने कहा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करो, ठीक है। तीसरी जगह अपन कह रहे हैं कि भाई अपनी अप्रोच डेवलप करो, वो चाहे किसी से सीख के, कॉपी मार के, कैसे भी धीरे धीरे उसको पहुंचो, डिस्कवर करो। एंड आई यूज द वर्ड डिस्कवर, बनानी नहीं है ऐसे पैर पे पैर ऊपर रख के ऐसा काउच पे, यू थ्रो योरसेल्फ एंड कीपिंग अ बकेट ऑफ पॉपकॉर्न्स और पूरा मुंह भर के और सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस से होगा, सुनकर होगा, कॉपी करके होगा, धीरे धीरे डिस्कवर होगी कि यार दिस इज द वे आई एम गोना यूज माय सॉल्व माय आरसीज। पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब सब हो जाएगा। बट दैट्स द थर्ड टिप, ओके। सो देन द फोर्थ वन वुड बी कमिंग, रीडिंग की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझे, अप्रोच करना शुरू किया। अप्रोच अपनी एक बार सेट हुई, फिर अपन एक्यूरेसी पे काम करेंगे। एंड हाउ वुड वी वर्क ऑन आवर एक्यूरेसी पार्ट? सी, if you have a good reading habit, and you've understood the different type of questions, once you start solving questions, now keep accuracy in mind. When you read a question, for example, you read a question which talks about, let's say, inference, okay? Now you know that inference वाले तो मेरे ठीक होते हैं और let's say गलत होते हैं। तो आपने जब क्वेश्चंस को स्टडी किया, एक में थीम था, एक में कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वाला था, समथिंग वाज रिलेटेड टू आर्गुमेंट देयर, एक इन्फ्रेंस था इम्प्लाइड आइडिया वाला, ये आपका गलत होता है। यानी कि आपको पता है कि 5 में से 3 तो सही होंगे ही होंगे, एक में थोड़ा सा डाउट रहता है और एक गलत होता है। नाउ यू नो व्हाट यू एक्चुअली स्ट्राइक रॉन्ग और व्हाट यू स्ट्राइक राइट। नाउ यू कैन हैव एक्यूरेसी इन योर माइंड। Should not be worrying about accuracy, you know, at a very initial phase. This is, RC development happens in phases. तो एक्यूरेसी पे जब अपन आ रहे हैं, अभी तक अपन ने एक चीज की बात नहीं की है, एंड दैट इज टाइम। अभी भी हमने टाइम की बात नहीं की। नहीं तो क्या होता है, आरसी ओरिएंटेशन मेंटोर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई साहब जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो, एक कैट में इतना सा टाइम होता है, उतना होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे मेरे विक्रम बेताल, उड़ के चले थोड़ी जाओगे, रुक जाओ ना थोड़ा सा, वहां पहुंचते हैं पहले उस लेवल पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे लेवल पे पहुंच रहे हैं। हमने रीडिंग डेवलप किया, टाइप समझा, टाइप समझने के बाद हमने क्या किया, टाइप समझने के बाद हमने क्या किया, भूल गया मैं, रुको। व्हाट वाज आवर द थर्ड वन? हाँ, हाँ, अप्रोच। अप्रोच, ठीक है। सो टाइप समझा, फिर हम अप्रोच पे गए, अप्रोच भी समझ में आ गई, अब हम एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। टाइम पे तो हमने काम ही नहीं किया अब तक, टाइम पे तो हमने काम किया ही नहीं। तो दिमाग से निकाल दो कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। स्पीड बाद में आएगी, पहले एक्यूरेसी आती है। दोनों अलग अलग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक स्पीड पे नहीं पहुंचे हैं अपन, अभी एक्यूरेसी पे हैं। नाउ फिफ्थ टिप, पर उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइस, संडे इज अप्रोचिंग, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट पता आपको सबको है, कंटिन्यू बताता हूं मैं, लेकिन कम थोड़ी हो तुम लोग, टेस्ट नहीं देते हो। नाउ आई नो अ लॉट ऑफ यू आर लाइक गिविंग मी फ्राउंस एंड एवरीथिंग। सर मैं तो दिया था, इस बार ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, नीचे से रैंक आई थी, बीच में रैंक आई थी। कोई अच्छी से जल्दी से गुड न्यूज भी सुनाओ कि भाई किसको सब्सक्रिप्शन मिला पूरे साल का, किसको 75% स्कॉलरशिप मिली है, अरे 25% मिली है, कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, ठीक है। और इससे भी बड़ा बेनिफिट ये है दैट व्हेन यू टेक स्कॉलरशिप टेस्ट एंड एवरीथिंग, व्हाट हैपेंस इज द असेसमेंट, व्हाट हैपेंस इज द एनालिसिस। क्या किया, क्यों किया, कैसे करना था, नीचे से रैंक आई, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे, सिटर्स कौन से थे। ये खेलना बहुत जरूरी है, ये लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत जरूरी। थोड़ी थोड़ी सी खरोंचें आती जाएगी ना अगर, तो बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड टू अनलॉक दिस स्कॉलरशिप टेस्ट गाइस, यू नीड टू यूज माय कोड, दैट इज GSMBA। क्या था ये? हाँ, तुम्हारा सपना, मेरा नाम तुम्हारा सपना, है ना।
So promise, quickly give me thumbs up. Yes, I can see that. Thank you very much. चलो, अब ये तो एक बात और बताओ, सबसे पहले इनफैक्ट उससे स्कॉलरशिप टेस्ट से पहले आई शुड हैव आस्क्ड यू दैट हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ अनअकैडमी, है ना? अब इधर तो देखने की जरूरत नहीं है. Very few of you, I know a number of you have already installed. I know that every day I get messages and everything that people are downloading and they are taking benefits out of it. फिर उसके बाद थैंक यू बोलने के लिए ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले जिन्होंने नहीं किया उनको बोलो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करें. Share the link of this application with your friends who have not downloaded. Why? Special classes, हाँ, स्पेशल क्लासेस अटेंड करना है, स्पेशल क्लासेस भी फ्री हैं, उनमें अनलॉक कैसे करोगे? मेरा कोड से अनलॉक कर सकते हो, ठीक है? GSMBA इज माय कोड एंड यू कैन अनलॉक योर दिस थिंग, फ्री क्लासेस. और उसके अलावा इतना कुछ है उस ऐप में, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा. हाँ, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, आस्क इट आउट. हाउ वुड यू डू दैट? अरे कितनी बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि क्वेश्चन पे अटक गए, अब करें क्या? क्लिक करो, भेजो, आपके एजुकेटर्स आपको आंसर भेजेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, ध्यान रखेंगे. दैट्स अ मिशन अनअकैडमी इज होल्डिंग. गाइस, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि देखो, अनलेस यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ऐसे सिर्फ अपने मन का करना वो नहीं हो पाएगा. यू हैव टू सॉल्व समथिंग और द अदर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी. अब सोचो कोविड के टाइम पे कितना मुश्किल हुआ, एंड देन अनअकैडमी वाज देयर टू सॉल्व दिस इशू, एंड यू गाइस सिटिंग एट होम आर एबल टू स्टडी, है ना? ऐसा दिल से एकदम चेयर. गिव thumbs up for Unacademy. Yes. So tip number 5, that is develop the right speed. Now what's developing the right speed means? अभी तक हमने स्पीड की बात नहीं की थी. फिफ्थ स्टेप पे हम राइट स्पीड की बात कर रहे हैं. That is when you start practicing more and more questions and gain confidence, आप देखना स्पीड पे अपने आप वर्क हो जाएगा. You are not supposed to consciously work on your speed. Yes, gradually let it come gradually to you. Do not work over it. If you work over it, आपकी एक्यूरेसी नीचे जाएगी, कॉन्फिडेंस कम होगा और फिर ऐसा लगेगा आई एम बैक टू स्क्वायर वन. ठीक है? तो माइंड यू, डू नॉट पुश फॉर स्पीड एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी. यूजुअली स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है. दिस इज द रिलेशनशिप. स्पीड एंड एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मत करना इस पे काम है, ठीक है? आप सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करो, खूब प्रैक्टिस करो, एंड यू सी आपकी स्पीड अपने आप बढ़ रही है. प्रैक्टिस अर्न्स व्हाट? स्पीड. ओके, चलिए. Now, the sixth tip. Now, sixth tip says, अभी क्या हुआ? अभी बेसिकली अगर हम 1 2 3 4 की बात करें तो हमने क्या किया? रीडिंग स्पीड, रीडिंग की बात की. पहले हम रीड करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर अपनी खुद की एक अप्रोच डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद एक्यूरेसी आएगी, फिर जाके स्पीड अपने आप बढ़ेगी. ठीक है? और इम्पॉर्टेंट, द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो प्रैक्टिस है जिससे स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी डेवलप होगी, इसका सोर्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अभी क्या करते हैं ना अपन, अभी गूगल चाचा के पास जाते हैं. गूगल चाचा आरसी पैसेजेस फ्रॉम कैट फॉर कैट ऐसा डाला और जो सामने आता है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. इजी मिल गया, जल्दी सॉल्व होता है. फेक सूडो कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है वो इतना अच्छा लगता है कि हम उससे पार नहीं पा पाते, बाहर नहीं निकलना चाहते. सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. द सिग्निफिकेंस of the right material is like it cannot be replaced. Realize it. Right material you need. आरसी सॉल्व कर रहे हो, कैट के लेवल का है कि नहीं है? कैट के लेवल का है, व्हाटएवर एग्जामिनेशन यू आर लुकिंग फॉर, फेक या सूडो कॉन्फिडेंस. आपको आज खून नहीं बह रहा, आज पसीना नहीं बह रहा, लेकिन कल खून बहेगा, राइट? तो रेलेवेंट कंटेंट फॉलोड बाय रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड गुड एक्सप्लेनेशन. यस, ये जो अपना पुराना वाला एक इंडियन स्टाइल है ना कि सब्जी के साथ धनिया फ्री टाइप, तो द मोर द मटेरियल यू नो बेटर इट इज. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. जस्ट राइट सोर्स. ठीक है? सो ये फ्रीबीज मिलती हैं वेबसाइट्स पे, कुछ फ्री मिल रहा है, एक बार जस्ट हैव योर योर बेसिक इंटेलिजेंस इन प्लेस एंड देन आस्क, एनीथिंग यू गेटिंग फ्री, will it give you complete value? Will it give you complete value? No, it will not. इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, एक बेसिक विजडम लगानी, बहुत यूँ समझदार होने की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब यूँ आर्यभट्ट और अब्दुल कलाम हो जाओ आप, ऐसा ऐसा नहीं है. बहुत सिंपल, खाना खाते हो तो इतनी विजडम तो है ना अपने पास.
and tomorrow we're gonna invest 15 to 20 lakhs on our MBA, and at this time we cannot spend 15 to 20,000, 25,000 on our preparation. We're looking for freebies. नहीं, it is irrelevant. टाइम लग रहा है, एनर्जी लग रही है, यूज नहीं हो रहा. तो अपना मटेरियल जो है जिससे पढ़ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मटेरियल सेट हो गया, यहाँ तक पहुंच गए अपन. देन द लास्ट स्टेप इज स्टार्ट राइटिंग सेक्शनल टेस्ट. If you're not writing sectional tests, you will not be able to, map your performance. आपने क्या किया, समझना ध्यान से. आपने रीडिंग करना शुरू किया, आपको क्वेश्चंस मिलना शुरू हो गए, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आने लग गए, आपकी अप्रोच डेवलप हुई, आपकी एक्यूरेसी डेवलप हुई, आपका स्पीड डेवलप हो गया. ये सारा का सारा हो पाया बिकॉज यू हैड द राइट मटेरियल. अब नाउ दिस इज द टाइम टू असेस योरसेल्फ. उस कबूतर ने जिसने आंखें बंद कर रखी है कि कैट, कौन सी वाली कैट, कोई सी वाली भी कैट मान लो अगर खुद को कबूतर मान रहे हो तो. अरे हाँ ठीक है ना, सुनो समझो. तो वो जो ऐसा कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना कि भाई आसपास बिल्ली तो है नहीं, तो बिल्ली नहीं है तो उसको लगता है कि बस भाग गई बिल्ली, अंधेरा छा गया, क्योंकि आंखें बंद थी. हाँ, तो अब आंखें खोल लो, है ना. ऑल द कबूतर्स आउट देयर, आंखें खोलो, सेक्शनल टेस्ट वगैरह देना शुरू करो, सो दैट यू विल मैप योर ओन परफॉर्मेंस. यू विल सी दैट हाउ मच, ऐसे कितने पानी में है अपन, उससे पता लग जाएगा. दूसरा क्या होता है, देखो, हाउ you are able to read quickly, are you able to attempt the right questions or not, because all questions नहीं करने हैं, all questions नहीं करने हैं, right questions करने हैं. 4-5 में से 4 वो या 3 वो जो करेक्ट करते ही हो आप. द राइट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी वो एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ, ये कब पता चलेगा, ये पता चलेगा व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट्स. ठीक है, एंड ऑल अगेन दिस वुड हैपन व्हेन यू बी प्रिपेयरिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो क्या होता है गाइस, a number of times students comment and they ask, so you are taking sessions on YouTube, so will it be sufficient? How would I say, what would I say? हाँ बिल्कुल sufficient है. ये सच नहीं है. अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सफिशिएंट है, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनके लिए कैसे क्या होगा. बहुत सिंपल सी बात है, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ, yes, they would be good, these sessions on YouTube would be good, but if you are a dedicated aspirant, you need structured preparation. तो अभी जैसे हमने क्या किया, 7 टिप्स में स्ट्रक्चरिंग की, that's how a structured preparation, dedicated preparation. सेक्शनल टेस्ट कहाँ से, हर बार कहाँ से उठाओगे. डेली टाइम फिक्स कर रखा है आपने कि 3 बजे दिन में मैं सेक्शनल टेस्ट देता हूँ एक VARC का, डेली कहाँ से आएगा. स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहिए ना. एनरोल योरसेल्फ इन वन ऑफ द कोर्सेज एट लीस्ट अवेलेबल टू यू, whichever you find the best. Okay. So open your eyes, assess yourself. So guys, before I sign off and everything, I would like to tell you that when you read, you think and you process that thought. How? Because you have knowledge. जो भी टेक्स्ट, जिस भी तरह का टेक्स्ट है, साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, लिटरेचर के ऊपर है, सोसाइटी के बारे में कुछ बात है, व्हेन यू हैव दैट नॉलेज ओनली देन यू कैन थिंक. द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द पैराग्राफ, इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट, देन ओनली यू कैन थिंक एंड प्रोसेस. तो ये थिंकिंग एंड प्रोसेस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, योर नॉलेज ऑफ व्हाट, कॉन्टेक्स्ट, जो बात हो रही है, इकोनॉमिक्स है, ये है, वो है, सोसाइटी है, साइंस है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज एंड थोड़ा बहुत वोकैब. जब ये दोनों होंगे तब ये हो पाएगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रीडिंग यू विल बी एबल टू थिंक एंड प्रोसेस योर थॉट. देन ओनली यू कैन से दैट you are able to comprehend what is there in the passage. ठीक है, without thinking and processing your thought, the comprehension doesn't happen. तो साथ साथ में अपनी वोकैब लर्न करते रहो. कोई महान खिलाड़ी लोग आपको जाके कहते हैं ना कि वोकैब के क्वेश्चन तो कैट में आते ही नहीं है, तो अब करने की जरूरत क्या है, उनको बोलो चाचा राम राम, बहुत अच्छी बात है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स लर्न करने गाइस, सो दैट योर कॉम्प्रिहेंशन वुड गेट बेटर. नंबर 2, CAT is not the only examination you're preparing for. There will be more examination you're taking in which there will be direct questions of vocab as well, and vocab would be helping you in developing your comprehension. अभी लिख दिया यहीं पे, रिपीट नहीं करूंगा. ठीक है, गॉट इट. ये ध्यान रखना, RTPC आज से अपने को 4 लेटर वर्ड एक ही याद रखना है, RTPC. ठीक है, एक्रोनिम मान लो इसको, रीड, थिंक, प्रोसेस एंड कॉम्प्रिहेंड. ठीक है, बढ़ जाए जिंदगी में आगे. चलिए, सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द राइट टाइम. इसके बाद थोड़ा सा रिग्रेट होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़ा लेट होना शुरू हो जाएगा. पिकअप प्लस और आइकॉनिक. प्लस हैज गॉट सेवरल फीचर्स, आइकॉनिक हैज प्लस का फीचर प्लस मोर. सजेशन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल सजेशन है कि गो फॉर आइकॉनिक. ठीक है, देयर आर न्यू बैचेस,
as per your convenience, as per your liking, as per your understanding. Pick up a batch for yourself and start your structured preparation. The advice is go for long term, use my code, that's GSMBA, Mera Naam Tumhara Sapna, and pick up a structured preparation. Okay? Iconic, I would suggest. Right? Yes, and if you think the information I shared with you, this is useful, these 7 tips, कौन से हैं? जल्दी से 7 tips कौन से थे? रीड करना है, फिर क्या करना है रीड करके? क्वेश्चंस का पता करना है, क्वेश्चंस का टाइप एक बार समझ में आ जाएगा तो क्या होगा? अपनी अप्रोच डेवलप होगी, अपनी अप्रोच होगी, फिर एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी तो फिर स्पीड आएगी, स्पीड से ये सब कैसे आएगा? जब राइट मटेरियल होगा, और जब ये सब हो जाएगा तो आपको क्या देने हैं? टेस्ट देने हैं। कौन से? सेक्शनल टेस्ट ऑफ BARC, एंड देन द लाइफ वुड बी योर्स। ठीक है? So this information, do not forget to like the video. पहले कर दिया होगा, नहीं भी किया तो अब करो, ठीक है? And then share this video with whoever you feel they need this information. People who are writing CAT or any other aptitude test right now or later. After 10th standard, 11th standard, ऐसा ये वाले जो videos हैं, जो वाली information है, forget videos, ये information है, this is important. So you can keep sharing it with your juniors as well. Batchmates, junior friends, ठीक है? And any question you want me to address, put it in the comment box. What I'll do, I'll answer it there. If I feel that यार ये तो बड़ा ऐसा question है जो काफी students का होगा, then I'll take a small session on that. ठीक है? So ऐसे हमारी बातें चलती रहेंगी. When it comes to RC, आज का ज्ञान ये लेके जाओ छोटा सा, जो कि RC का भी है और जिंदगी का भी है. क्या? ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता. स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ. Right? Alright guys, see you very soon. Bye bye. Sat Shri Akal. Ram Ram.